हाय हाय। तो इन दिस लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू करा था फ्रॉम प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 1 to 10। अब यहाँ हम शुरू करेंगे फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 11 और जो भी क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चंस ऑलरेडी ईएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है द बाइनरी डेटा इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन साइज ऑफ बाइट। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे पास बाइनरी डेटा है वो 8 बिट का है। ठीक, एंड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो जो भी डेटा होगा वो कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा और उसको मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करा हुआ है। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाइनरी डेटा लिखूंगा और अगर नंबर नेगेटिव है तो उसके पॉजिटिव नंबर का मैं टूज कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। ठीक, तो लेट्स सी देन द नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ -127 डेसिमल इज। तो मुझे जो डेटा दिया है वो दिया है डेसिमल में और वो नेगेटिव है और मुझे किस में लिखना है, बाइट में लिखना है। तो यानी कि मुझे इस 127 को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में। और बाइनरी में निकालने के बाद उस नंबर को नेगेटिवली रिप्रेजेंट करने के लिए उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक, लेट्स चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, बाइनरी इक्विवेलेंट। ओके, बाइनरी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ 127। तो कैसे निकालेंगे, 127 को मैं 2 से डिवाइड करना चालू करूंगा और रिमाइंडर को लिखता चला जाऊंगा। तो 2 into 63 will give you the remainder 1. Then again I have to divide it by 2. I'll go with a 31. It will give you the remainder 1. Again I'll go with a division, that is 15. Okay, times it will give you remainder 1. Then I'll go with the 7 times, it will give you remainder 1. Then I'll go with the 3 times, it will give you the remainder 1. Then 1 time it will give you the remainder 1, and again I cannot divide it, so I'll write 1 exactly. So I need to go with down to up. Okay, but ये कितनी बिट है ये है 7 बिट और मुझे डेटा किसमें लिखना, 1 बाइट में। तो यानी कि 127 in decimal will be equivalent to 0. Okay, then 1 1 1 1 1 1 1. So this is the binary 8-bit representation, sorry, equivalent value of 127. अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे शो करना है -127. So it will be equal to what, 2's complement of +127. Okay, so let's find out. सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, 1's complement निकालूंगा। ठीक है, तो 1's complement कैसे निकालते हैं, 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस करते हैं। तो यानी कि 1 0 0 0 0 0 0 0. So this is the 8-bit representation, यानी 1's complement of +127. Then I need to add 1 to the LSB side, so it's 1 0 0 0 0 0 0 and 1. So let's count how many numbers of zeros are there. 1 2 3 4 5 6. So यानी कि number of zeros is equal to how much, 6. Okay, so your answer C is correct. Okay, now let's see the next problem. This problem says that an 8085 microprocessor executes the following instruction. Okay, two numbers are represented in signed 2's complement form P and Q. If Q is subtracted from P, the value obtained in signed 2's complement form is. ठीक है, तो मुझे परफॉर्म करना है Q minus P. Okay, so let's see. I need to perform what, P minus Q. Q is subtracted from P. So what I can write, I can find P plus 2's complement of Q. Okay, so let's do it. So first of all I need to find out the 2's complement of Q. 2's complement of Q तो कैसे करते हैं, सबसे पहले निकालूंगा 1's complement and then I will find the 2's complement. तो 1's कैसे निकालूंगा, 1 को 0 से और 0 को 1 से। तो let's see 0 0 0 1 1 0 0 1 and I have to add 1 to the LSB to find out the 2's complement. So it will be equal to what,
0, 1 plus 1 is 2, so 0 will be here, 1 will be carry, 1 0 1 1 0 0 0. So this is your 2's complement of the number. Okay, now I need to perform the subtraction operation. So what I can write, the p is how much, 1 1 1 0 1 1 0 1, and then I need to add the 2's complement of the q. So कितना आया था हमारे पास, 0 0 0 1 1 0 1 0. So let's add it. So 1 plus 0 is 1 1 1, 1 plus 1 is 2, so 0 must be here, 1 must be here. So again 1 plus 1 is 2, so 0 1 0 1 0 1 0, and carry is equal to 1. Okay, so कैरी का आना ये बताता है कि जो भी मेरे पास रिजल्ट आया है वही आंसर है, और मुझे उसका टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। Okay, so I think this point is clear. Option B is correct. So now let's see the next problem. So in problem 13 we says that इसके पास 3 स्टेटमेंट है और मुझे ये बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, टेकिंग टूस कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू साइन चेंज। ओके, सो इट्स ट्रू, द पॉइंट इज ट्रू, कि जो भी मेरे पास, जब भी मैं किसी भी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो वो उस पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करता है। Next, what I have in the second statement, in the 2's complement representation, the most significant bit MSB is 0 for the positive, because अगर नंबर पॉजिटिव है 2's complement फॉर्मेट के अंदर तो मैं इसको 2's complement नहीं निकालता हूं, यानी कि जो MSB मुझे मिलेगी वो क्या होगी, 0 होगी। और अगर MSB 1 होती है तो नंबर मेरा नेगेटिव होता है। ठीक, तो स्टेटमेंट 2 is also correct. Now let's see the next. In 4-bit binary representation of binary number a प्लस 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो अगर मैं ऐसा करता हूं a प्लस 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो क्या देगा मुझे, ये 0 देना चाहिए। ठीक है, इट शुड रियल 0, बट यहां पे कितना देगा, 2 to the power 4, विच इज रॉन्ग। क्लियर, सो इट शुड रिजल्ट दी 0। सो मेरे पास स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। तो मैं क्या आंसर लगाऊंगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। In next problem, the number of ones in 8-bit representation of -127, तो मुझे -127 को रिप्रेजेंट करना है और उसमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ठीक है, अब जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या क्या है, इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज m, तो जो नंबर ऑफ वंस है, अगर मैं -127 को 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करूं और उसमें जो नंबर ऑफ वंस आएंगे उनकी वैल्यू क्या है, m, और अगर मैं उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करूं तो उसमें नंबर ऑफ वंस की वैल्यू क्या है, n। तो उसने पूछा क्या है कि m/n क्या होगा। ठीक है, so for that I need to do what, first of all I need to convert 127 into binary. Okay, so binary equivalent of 127, ठीक, it is equal to 0 1 1 1 1 1 1 1. Okay, so this is the 8-bit representation of plus 127 into binary. So फर्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। सो 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 1's कॉम्प्लीमेंट। ओके, बिकॉज नंबर क्या है मेरे पास, नेगेटिव है, एंड देन आई नीड टू ऐड व्हाट, आई नीड टू ऐड 1। ठीक है, तो फर्स्ट फाइंड करो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस 127, कितना आएगा, 1 0 0 0 0 0 0 0, and you have to add 1 to find our 2's complement, so it will be 1 0 0 0 0 0 0 1. Okay, so this is nothing but it is minus 127. Okay, so this value represents what, minus 127. Okay, it's in binary. So कितने नंबर ऑफ वंस हैं इसमें,
अगर मैं m की वैल्यू पूछूं तो 2। क्लियर? अब अगर मैं इसको इसी 127 को रिप्रेजेंट करूं इन दी वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, तो क्या करते हैं, जस्ट नेगेटिव नंबर है तो मैं उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसा आएगा, सो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 127 कितना आएगा बोलो, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर दिया, तो कितने आ गए इसमें नंबर ऑफ वंस 1। अब मुझसे पूछा क्या गया है, m is to n and that must be 2:1, so option A is correct. Clear? So now let's see the next problem. The octal equivalent of the decimal number. So point ये है कि अगर मुझे इस octal इक्विवेलेंट निकालना है डेसिमल नंबर का, तो जो मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले इसकी मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लूंगा इन टर्म्स ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट एंड देन आई विल कन्वर्ट दैट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल, बट दैट मेथड विल बी वेरी वेरी लॉन्ग। ओके, so what I can see here that I need to convert the relation. I'm going to use the simplest method. I'm not going to convert I'm not going to find out the value, the decimal value of this relation and then convert into octal. I'll do the very easiest method for this. I have 183 and 512. So what I can write 1 plus 83 divided by 512. Okay. So what I'll do, I'll convert this relation like when we try to find out the decimal equivalent of octal number. तो मैं उस रिलेशन में कन्वर्ट करूंगा जो हम रिलेशन लिखते हैं किसी भी डेसिमल नंबर का या किसी भी ऑक्टल नंबर का, जब मैं डेसिमल इक्विवेलेंट निकालता हूं। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग हियर। आई कैन राइट 1 प्लस, मैं 83 को ऐसे लिखूंगा कि उसके सारे के सारे डिजिट किसके अंदर आ जाए, ऑक्टल के अंदर, यानी कि 0 to 7 के बीच में आ जाए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कन्वर्टिंग इट 80 प्लस 3 डिवाइड बाय 8 क्यूब, तो 8 क्यूब इज इक्वल टू 512 होता है। ठीक है, अगेन इसमें 8 आ गया है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू राइट नाउ, आई हैव 1 प्लस 80 को लिखना है तो 80 को कैसे लिखूंगा मैं, 80 को लिख सकता हूं मैं 8 plus 8 into 9 plus 3, but still 9 is not the independent digit in octal, तो 9 को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। so what I can write 1 plus 8, ट्राई करो कि मोस्टली चीजें 8 में हो जाए। ठीक है, so plus 8 into 1 plus 8, I can write this, 9 को मैंने 1 plus 8 में कर दिया, सारी चीजों को मैं 8 में लेके जा रहा हूं, तो कितना आ जाएगा 1 plus 8, यानी कि this 8 and when I multiply with 1 it will become 2 into 8. Clear? It will become 2 into 8 plus, और 8 into 8 क्या हो जाएगा 1 into 8 square plus 3 divide by 8 cube. Okay, so let's do it. 1 plus, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 2 into 8 to the power minus 2 plus 1 into 8 to the power minus 1 plus 3 into 8 to the power minus 3. So let's arrange it. I can write 1 into 8 to the power 0 plus 1 into 8 to the power minus 1 plus 2 into 8 to the power minus 2 plus 3 into 8 to the power minus 3. So जो रिलेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये रिलेशन कैसा दिख रहा है, ये रिलेशन दिख रहा है मुझे कि ये रिलेशन क्या दिख रहा है कि ये मैंने क्या निकाला है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ए ऑक्टल नंबर। क्लियर? सो व्हाट आई कैन डू दैट, द ऑक्टल नंबर कितना होगा मेरे पास, यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, सिंस इसकी पावर नेगेटिव है तो फ्रैक्शनल पार्ट से स्टार्ट होगा, 1 2 and 3. So this is your octal equivalent number. So option A is your correct answer. Okay, so now let's see the next problem.
So this problem says that convert the decimal number 41.6875 into octal. तो मुझे इस गिवन नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो इसके बाद दो पार्ट हैं, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शनल। तो हम दोनों को सेपरेटली कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डील करेंगे किसके साथ, इंटीजर पार्ट के साथ, इंटीजर पार्ट। So इंटीजर पार्ट में कितना दे रखा है 41 एंड लेट्स स्टार्ट द डिवीजन ऑफ 41 बाय 8 क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इट विल गोस टू 5 टाइम एंड इट विल गिव यू द रिमाइंडर 1 एंड आई कैन नॉट डिवाइड फर्दर सो इट विल बी 5। सो व्हाट आई कैन राइट डाउन टू अप। तो यानी कि 41 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट 51 इन ऑक्टल। ओके, नाउ नेक्स्ट आई हैव व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है मेरे पास, दैट इज 0.6875 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 8 से। तो 8 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आ जाएगा, इट विल कम टू 5.5 एंड दैट 5 विल बी योर कैरी। ओके, द कैरी विल बी इक्वल टू 5। सो नंबर कितना बच गया 0.5, मल्टीप्लाई करो 8 से तो मिलेगा 4.0 एंड दिस विल बी योर कैरी। सो दैट इज कैरी इज इक्वल टू 4। ओके, तो हमें कितना बच गया 0.0। तो अगर मैं 8 से फर्दर मल्टीप्लाई करता हूं देन आई विल ऑलवेज बी गेटिंग व्हाट 0। सो इसको लिखते हैं अप टू डाउन। तो मैं कितना लिखूंगा, यानी कि 0.6875 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट 5 पॉइंट, और अगर 0 पॉइंट आई कैन राइट लाइक दिस 0.54 इन ऑक्टल। तो अगर मैं कंप्लीट कन्वर्जन की बात करूं 41.6875, ओके, सो in decimal will be equivalent to 51.54। कितना आंसर बोला मैंने 51.54 in octal। so based upon this relation your option A is correct। clear? so now let's see the next problem। okay, the binary representation of 100,110 is numerically equivalent to। तो मुझे इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू बतानी है और मेरे पास चार ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में दो टाइप की इक्विवेलेंट वैल्यू पूछी गई है, एक डेसिमल और एक ऑक्टल। तो हम एक एक करके पहले डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे, देन वी विल बी फाइंडिंग व्हाट ऑक्टल इक्विवेलेंट, देन वी विल टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जा रहा हूं डेसिमल इक्विवेलेंट की तरफ। डेसिमल इक्विवेलेंट तो कैसे निकालोगे इसका 100,110 ये बाइनरी में है और इसका मुझे क्या निकालना है डेसिमल इक्विवेलेंट। तो कैसे निकालेंगे 1 इंटू कितने डिजिट है इसमें टोटल 6, तो 5 से स्टार्ट करेंगे 2 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 और व्हेन आई ऐड इट इट विल बी इक्विवेलेंट टू 40। ओके, सो यानी कि ऑप्शन ए इज रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज रॉन्ग। क्लियर? नाउ लेट्स फाइंड द ऑक्टल वन, ऑक्टल इक्विवेलेंट। ठीक, ऑक्टल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मेरे पास 3 बिट्स के ग्रुप में पहले डिवाइड करूंगा। तो कैसे होगा डिवाइड, आई हैव अ 0 0 एंड देन 1 1 0, the 3 bit group and this 3 bit value will be 4 2 1। based upon that 4 2 1 I can calculate 4 plus it's only 4, so value of this is 4, 4 plus 2 is 6, so value of this is 6। so this means that 100,110 in binary is equivalent to 46 in octal। okay, so which option is correct, option B is correct for this question। now let's see the next problem। in that problem I need to do what, I need to find out the binary equivalent of the given hexadecimal number। okay, so how to convert hexadecimal into binary, you have to replace each and every digit by 4-bit equivalent value of a given hexadecimal number into binary। okay, so let's start it। I have 4, then I have F, I have a 4, then F, then 2, then D। तो वैल्यू ऑफ F कितनी होती है 15 एंड वैल्यू ऑफ D कितनी होती है 13। ओके, सो लेट्स कन्वर्ट इट। सो आई विल बी यूजिंग 8 4
to 1 मेथड। तो 4 के लिए क्या करूंगा, इसको 0, इसको 1, इसको 0, इसको 1। 15 के लिए 1 1 1 1 सबको ऐड करूंगा। तो 2 करने के लिए 0 0 1 0 करूंगा, और 13 के लिए 8 + 4 is 12 and +1 is 13। तो what I can write, the 4F2D in hexadecimal is equivalent to what? 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 and 1 1 0 1. So this is your answer in binary. So based upon that, your option D is correct. Okay. So now let's see the next problem again. So in that problem, the decimal equivalent of hexadecimal number 2A0F is, okay. So we need to calculate the hexadecimal value, decimal equivalent value of a hexadecimal number. How to do that? You have to multiply each digit by its place value, okay. So let's see. So decimal equivalent of 2A0F will be equal to 2 into 16 to the power 3, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट है, प्लस A into 16 to the power 2 plus 0 into 16 to the power 1 plus F into 16 to the power 0, okay. तो 2 into 16 to the power 3, A की वैल्यू कितनी होती है 10 into 16 to the power 2 plus 0 into 16 to the power 1, और f की वैल्यू कितनी होती है 15 into 16 to the power 0. So when I solve this relation, I'll be getting 10767. So based upon that, your option D is correct. Okay. Now let's see the next problem again. Okay. This problem, it says that hexadecimal conversion of a decimal number 227 will be, ओके. सो हमें एक डेसिमल नंबर दिया है, इट इज 227, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, ठीक है. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओनली इंटीजर पार्ट है मेरे पास, फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, तो इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए रेडिक्स से डिवाइड करते चले जाते हैं. तो कितनी वैल्यू मेरे पास 227 है, और मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो 16 से करूंगा. तो 16 into 14 gives you the remainder 3, okay. मैंने डिवाइड 16, it will goes to 14 times, एंड 16 से मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, तो कितना आ जाएगा इधर 14 आ जाएगा, और 14 का मतलब कितना होता है e, एंड यू हैव टू राइट डाउन टू अप. इसका मतलब क्या है कि 227 इनवर्ट दैट decimal will be equivalent to E3 in hexadecimal. So the option B is correct, and we'll be meeting in next lecture. Thank you.